Friends, we are back again. So today our topic is matrices and determinants. It was a topic requested by most of the students in the algebra section. So let's start. First of all, what is a matrix? Matrix क्या है? देखो भाई, मैट्रिक्स एक एरे एरे कैसा रेक्टेंगुलर एरे ऑफ सिंबल्स, ठीक है. Here is a very important point which could be real or imaginary. Okay. So what is a matrix? Matrix is a rectangular array of symbols which could be real and imaginary. Representation of array. Suppose there is a matrix. Matrix A. It can be like A 1 1, A 1 2, dot 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 A 1 n, A 2 1, A 2 2, dot 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 A 2 n. Similarly downward, A m1, A m2, dot 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 A mn. Okay. So as you are seeing, first of all let's confirm. I will give you a trick of how to learn which one is a row, which one is column. So this is the trick. What is the trick? Column started C, invert the column like this. Okay, then this is the column, means this one is the column and it is the row. Okay, so any matrix has a particular order, and that order is number of rows into number of columns. Okay, number of rows into number of columns. I think you have got the point how to learn rows and column. Okay, so what is the order of a matrix? Is equal to number of rows into number of columns. Now the very important point that I already told is that this number can be real or it may be imaginary. Very few people will tell you about this fact that in a matrix these numbers can be real or can be imaginary. So thus keep this point in mind. So let's have a question. Suppose there is a matrix which has 8 elements. एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 8. ओके, तो सवाल पूछा गया है व्हाट कैन बी द पॉसिबल ऑर्डर्स. अगेन नाउ फाइंड आउट द पॉइंट दैट obviously matrix it has 8 elements, means there will be some rows, there will be some columns. Okay, now as I have already told you that in a matrix obviously there are some rows and some columns, then this number will obviously be a multiple of some two numbers. Okay, okay, so it can be 8 into 1, 8 rows 1 column 8 rows, 4 rows 2 column 2 column 4 rows. So here are the possible orders it can have. Okay, now let's move to another question. Let there be a question like this ki, construct the matrix of order 3 into 2, okay, such that whose elements can be given by a ij is equal to 2i minus j. रो इंटू कॉलम 3 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स बनाना है. इसमें 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे.
तो एग्जैक्टली अब आई यहाँ शो कर रहा है नंबर ऑफ इसलिए रो को, और जे शो कर रहा है कॉलम को। A11 क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, 1। A12 0। तो इसलिए रो कितने हैं अपने पास, 3। कॉलम कितने हैं, 2। कर लोगे ना आगे, हम छोड़ दें इसको आगे, ठीक है, आप लोग कर लेना आगे। हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, classification of matrices. Depending upon various types, matrices have been classified into various groups. पहला, रो मैट्रिक्स। नाम से ही क्लियर है, रो मैट्रिक्स जिसमें बस रो हो, सिंगल रो। रो मतलब ये तो मान लो कि 1 2 3, इट इज रो मैट्रिक्स। दूसरा, कॉलम मैट्रिक्स। अगेन क्लियर फ्रॉम द नेम, जिसमें वैसे कॉलम हो, एंड दिस कॉलम कैन बी ऑफ एन इनफाइनाइट लेंथ, है ना। लेकिन रो मैट्रिक्स में कि एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स में कि मात्र एक कॉलम हो। तीसरा टाइप, फाइनली जब रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स जुड़ जाएंगे तो क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। मीन्स इन विच इफ देयर आर 2 रोज देन देयर विल बी 2 कॉलम्स। अगर 3 रो तो 3 कॉलम। मान लीजिए हम एक 3 इंटू 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, क्लियर दैट एक स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। तो इससे एक और बात कह सकते हैं, इससे एक पॉइंट निकल के आ सकता है। अगर मान लो कोई बोल दे कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एक परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैव ऑलवेज हैव अ परफेक्ट स्क्वायर ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स का हमेशा से ही एक ऑर्डर परफेक्ट स्क्वायर होता है। एक वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर परफेक्ट स्क्वायर है, यह जरूरी नहीं है कि वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट एनी मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज अ परफेक्ट स्क्वायर दैट इट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अब आ जाइए डायगोनल मैट्रिक्स। ना फर्स्ट ऑफ ऑल जानिए कि डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब आगे हम जो भी पॉइंट पढ़ेंगे, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो ओबियसली आपको लेकर चलना है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बना हुआ है, मीन्स इट इज ओबियसली अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आई थिंक दिस यू वुड टेक दिस पॉइंट इन माइंड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर हम बोल रहे हैं तो इसे आपको समझना है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स की,
तो आपको समझना है इसे लाइक अ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो आइए इसमें देखते हैं व्हाट इज अ प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल, सोचोगे आप कि एक डायगोनल ये भी है, एक डायगोनल ये भी है। तो अगर हम अगेन, मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली आपको जाना है लेफ्ट से टॉप पर और राइट से बॉटम पर। प्रिंसिपल डायगोनल, अगेन आई एम राइटिंग दिस हियर, मीन्स लेफ्ट से टॉप पर, लेफ्ट का टॉप और राइट का बॉटम, इनको मिला दीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स में, आपको जो भी मिलेगा ऑब्वियसली एक डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, मीन्स डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो नाम से क्लियर, वैसा मैट्रिक्स जिसमें बस डायगोनल एलिमेंट से एग्जिस्ट करते हो और बाकी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 2 0 0 0 3, इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ अब डायगोनल मैट्रिक्स से ही एक आता है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स वैसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो, मीन्स इट इज दैट diagonal matrix whose all diagonal elements क्या हो, बराबर हो। एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, it is a scalar matrix. Clear? Okay, now unit matrix or identity matrix. The very next is, okay, let me shift somewhat upward. Okay, unit matrix. ओके, ध्यान में रखना यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स अगेन क्या है, इट इज अगेन अ स्केलर मैट्रिक्स हुज ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, मीन्स ये जो स्केलर मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। क्या आई एम रॉन्ग, राइट? समझ रहे हैं, अगर एक ऐसा आपको स्केलर मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, देन दैट इज अ यूनिट मैट्रिक्स। इसका एक और नाम होता है either or से identity matrix। क्लियर? ओके, एक और टाइप बाकी है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स, अपर ट्रायंगुलर एंड सेकंड होता है लोअर ट्रायंगुलर। ओके, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। अगेन अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो ये ऐसा मैट्रिक्स है, अगर मान लीजिए कि अगर आप बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें क्या होता है, मान लो अगर ये डायगोनल है तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। फॉर एग्जांपल टेक ये ए बी सी, ओके, ये जीरो, डी ई जीरो जीरो, सॉरी ई, सही, ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मीन्स इस डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, व्हाट विल बी द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें अपर के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। कहने का मतलब मान लो कि 1 0 0 2 3 0 4 5 6, इसमें क्या है, इस डायगोनल के
जितने भी ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या हैं, सब जीरो। मीन्स अगर आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बातें कर रहे हो तो कहने का मतलब जो भी एलिमेंट्स है वो ऊपर में और नीचे वाले सारे सारे एलिमेंट्स जीरो है। अगर आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बातें कर रहे हो, कहने का मतलब जो भी एलिमेंट्स है वो नीचे हैं, ऊपर में कोई भी एलिमेंट नहीं। इसमें कौन आता है, a triangular matrix. A triangular matrix is called strictly triangular. उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इफ देयर diagonal elements are also zero, then that triangular matrix is called a strictly triangular matrix. Now the very next topic that we have is determinant of a matrix. Topic is the determinant of a matrix. It is our very next topic. You can take some rest now. Now, if you would have taken a break, then you can again start. Determinant of a matrix. Every matrix has a unique determinant. हर एक मैट्रिक्स का एक अपना यूनिक डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, सपोज दैट इट इज योर मैट्रिक्स ए बी सी डी, तो आप इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे लिखोगे, जस्ट लाइक मॉड, ओके, ए बी सी डी। आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि हर एक मैट्रिक्स का एक यूनिक डिटर्मिनेंट होता है। अब इसी डिटर्मिनेंट के आधार पे अगेन हम मैट्रिसेस को दो भागे बांटते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स हैं जिनका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो होता है, और ये वैसे मैट्रिक्स हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्लियर? तो इसके लिए आपको इसमें कैसे सवाल आ सकते हैं, अभी तक जो आपने सीखा, जो जाना, उसके आधार पे क्या सवाल आएंगे। आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, ओके, लेट्स सपोज लेट्स टेक अ मैट्रिक्स, दे देते हैं अपन एक मैट्रिक्स 2 5 6 8 9 10 14 15 16। अब मैं इसको सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, ओके, ये बहुत ही रैंडम नंबर ले लिए, बहुत बड़े बड़े नंबर है, तो आप सॉल्व करो, बताओ वेदर दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर और वेदर दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये आपका काम, ये मेरा काम नहीं है। अब बेसिकली अगर शायद आपने, अगर आप जानते होंगे कि बेसिकली आप रो कॉलम कैसे आप रीअरेंज कर सकते हैं, अगर आप ये जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में आसानी हो। ओके, डिटर्मिनेंट आगे है तो उसको हम आगे चर्चा करेंगे ऐसे, लेकिन तभी ओके